बच्चों, आप लोग ठीक से हैं ऐसा मैं आशा करता हूं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4th में आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस आपसे पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर एक पर टेम्परेचर का इफेक्ट है तो डेफिनेटली दूसरे पर है। और before come to that, let me first define the resistivity in terms of current density. Okay, resistivity in terms of current density. Resistivity of any material is defined as the ratio of electric field and current density at any point in the material. Okay, इसको अगर हम डिफाइन करें, it is defined as the ratio of electric field to the current density at any point in the material. ओके, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, सपोज करिए, उस पर आपने V वोल्ट लगाया है, तो इसमें करंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? डेफिनेटली L अगर इसकी लेंथ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? V/L। और ये यहां से लेकर यहां तक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है। किसी एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी अगर सपोज करिए J है, ओके, तो रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, इट्स यूनिट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ओम इंटू मीटर। इसको हम दूसरा इस रूप में भी लें, यहां से देखें, अगर I करंट इसमें फ्लो कर रही है तो वी कैन राइट दिस E इज इक्वल टू V/L, अभी लिखा है V/L, एंड ऑल्सो वी कैन राइट J इज इक्वल टू I/A। इसे हम रियलाइज कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू V/L अपॉन I/A, that means V/I into A/L, and this V/I means what? From Ohm's law you can write this is resistance of the material, and A/L यहां से भी आप निकाल सकते हैं। इस रो इज इक्वल टू RA/L, तो R की यूनिट क्या है? ओम है। यहां पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज ओम मीटर यूनिट आ जाएगी। और दूसरा, इसको इस रूप में भी हम रियलाइज करना चाहते हैं, सिंस वी हैव टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर रो इन टर्म्स ऑफ द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और नंबर डेंसिटी, which we obtain as we know that if n is the number density of free electrons, that means number of free electrons per unit volume। यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को नंबर डेंसिटी बोलते हैं। एंड Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Then we have obtained J is equal to NeVd, okay, or and also we have obtained Vd is equal to small e capital E upon m tau. What is tau here? Tau is the average relaxation time. Okay, if we put all these values in expression of rho, that is rho we will obtain is equal to E/Ne into E capital E upon m tau. E cancel out, so we have m upon
Ne square tau, Ne square tau, rho is equal to. And that is very important relation. On the basis of this relation, we can explain the temperature dependence of resistivity or resistance. As we know that rho is equal to Ra upon L, so we can have R is equal to rho L upon A, that is M upon Ne square tau L upon A. So we have two types of relation. This is third and this one is the second. On the basis of these two relations, we conclude that the resistivity of the material, or you can say the conductor or any material, will depend upon two factors. First one is the number density of free electrons, and second one is the average relaxation time. E here is the charge present on the free electron or the charge carrier. M is mass of the electron, which is charge carrier in case of metallic conductor. So you can say that the resistivity of any material will depend upon its number density and average relaxation time, and both are written in the denominator. So rho inversely depend upon N and inversely depend upon tau. Temperature dependence of resistivity of any material, and let us assume the material as a conducting material. तो सबसे पहले हम लेते हैं मेटल्स. ओके, मेटेलिक कंडक्टर्स. मेटल्स में हमको पता है कि रो is inversely proportional to N, and it is also inversely proportional to tau. Since tau is nothing but lambda upon V or ms. What is lambda here? Lambda is the mean free path, okay, and V is the velocity. You can say random thermal velocity, or you can say the root mean square velocity. When we increase the temperature, lambda decreases. लैम्डा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोलिजन जो होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा बाय गेनिंग एनर्जी, और जो वाइब्रेट करेंगे एनर्जी गेन करने के बाद, तो वो क्या करेंगे, वो कम डिस्टेंस में ही कोलाइड करेंगे क्रिस्टल लैटिस में, और इसलिए लैम्डा जो है ऑन एवरेज जो मीन फ्री पाथ है वो घट जाएगा. एंड ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल रहे हैं, वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. तो साइमल्टेनियस इफेक्ट देखें तो बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और डिक्रीजिंग द मीन फ्री पाथ, वी क्या होगा, वी आर एम एस इंक्रीजेस. ओके, by increasing T, these two factors, lambda decreases, Vrms increases, and simultaneously we can say tau decreases. तो क्या हो जाएगा, tau decreases, and whenever tau decreases, it means rho क्या कर रहा है, increase कर रहा है. ओके, और n के इंक्रीज करने से विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर n इंक्रीज कर रहा है, सो तो रो क्या होगा, डिक्रीज करेगा. इसका इस पर जो इफेक्ट है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए हैं, जितना पहले फ्री थे उसकी तुलना में थोड़ा और फ्री हो जाएंगे. और इसका मतलब ये हुआ कि एक का इफेक्ट तो डिक्रीज का है, दूसरे का इंक्रीज का. तो अब इसमें कौन सा डोमिनेट करेगा, निश्चित रूप से टाउ डोमिनेट करेगा, टाउ का इफेक्ट डोमिनेट करेगा. क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो मेटल्स में खास करके कॉपर अगर हम लें तो 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स पर
क्यूबिक मीटर या कह लीजिए पर 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के किसी मेटल में 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज टू मच, टू लार्ज। तो कंपेरेटिवली जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उनका वो इफेक्ट नहीं आएगा जितना कि ये टाउ डिक्रीज करने का। तो निश्चित रूप से एज ए रिजल्ट यू कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the resistivity of the metallic conductors increases. ओके, इंक्रीज करेगा। अब कितना अमाउंट इंक्रीज करेगा? अगर इसको देखें तो वी हैव रिलेशन दैट इज रो इज इक्वल टू रो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, रो 0 1 प्लस अल्फा, हियर वी कैन राइट डेल्टा टी। Delta T is the temperature difference. ओके, अल्फा को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, दोनों के लिए वही अल्फा ही रहेगा। अब यहां पर यह बात स्पष्ट है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी डेल्टा टी पॉजिटिव होगा और रो टी बढ़ेगा, रो 0 डिग्री टेम्परेचर या 0 केल्विन टेम्परेचर की तुलना में ये बढ़ेगा। ओके, अब इसके अलावा हम दूसरा मटेरियल्स लेते हैं। लेट अस टेक सेकंड मटेरियल दैट इज एलॉय। ओके, दूसरा मटेरियल हम लेते हैं एलॉय। कर रहे थे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर होता है? तो क्योंकि आप जानते हो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो सिंस रो इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो R भी क्या होगा? R इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक बात आप लोगों के मन में आ सकती है कि L और A पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? L लेंथ, वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली टेम्परेचर का इन दोनों पर जो इफेक्ट पड़ेगा उससे काफी ज्यादा इफेक्ट रेजिस्टिविटी पर पड़ेगा। तो वी विल इग्नोर इट। L और A में जो वेरिएशन हो रहा है, जो चेंज आ रहे हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं। तो कुल मिलाकर के रो में जो चेंज आ रहा है उसके कारण से आर भी चेंज होगा। आर का एक्सप्रेशन लिखें तो वी विल हैव आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी, इसके लिए भी ये होगा, है ना? तो ये एक तरह से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये बातें मेंशन करना था। अब इसके अलावा अगर देखा जाए एलॉय में, एलॉय जो होते हैं, जैसे खास करके कांस्टेंटिन, मैग्नीन और नाइक्रोम, ये तीन हमने लिखा है। ये टेम्परेचर के साथ वेरी करने से इनका जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो वेरी बहुत ज्यादा नहीं करता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज ऑलमोस्ट unaffected by changing टेम्परेचर। थोड़ा बहुत होगा लेकिन अप्रिसिएबल चेंज नहीं होता है। तो इनका इस्तेमाल जो करते हैं खास करके प्रैक्टिकल पर्पस से, जैसे मान लीजिए एक वायर है किसी एक्सपेरिमेंटल किट में, खास करके जैसे मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको, और पोटेंशियोमीटर, ओके। इन दोनों में
इसके वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते हैं और टेम्परेचर के साथ इनका वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुल मिलाकर के मेटल की तुलना में इनका टेम्परेचर से इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। एंड थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर में देखें तो इसमें निश्चित रूप से रेजिस्टिविटी जो है, जो हम लोगों ने लिखा है एक्सप्रेशन 1/ne² टाउ m/, इसमें देखें दोनों चीजें, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर n इंक्रीज करेगा तो रो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड, टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो रो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ये दोनों में ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टाउ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां पर मेजॉरिटी होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों चार्ज कैरियर के रूप में रहते हैं। होल्स मीन्स रिक्तता होती है। अब ये दोनों की संख्या अचानक टेम्परेचर रेज करने से क्या होती है, धीरे धीरे तेज बढ़ती है, ज्यादा बढ़ती है, बल्क में बढ़ती है, क्योंकि जो चार्ज कैरियर होते हैं इनका जब भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटी का एडिशन, और इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं सेमीकंडक्टर में। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, तो ये टाउ का इफेक्ट यहां ज्यादा ना होकर के इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। यानी एन इंक्रीज करेगा तो एक तरह से टाउ डिक्रीज करेगा। यहां टेम्परेचर बढ़ाने से रो इंक्रीज कर रहा है और यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से रो डिक्रीज कर रहा है, बट द अल्टीमेट इफेक्ट, रिजल्टेंट इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इज द डिक्रीज इन रो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहां पर अल्फा क्या है, निगेटिव लिया जाता है। अल्फा की वैल्यू जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं फॉर सेमीकंडक्टर, इट इज टेकन नेगेटिव, इट्स वैल्यू नेगेटिव। यानी जब टेम्परेचर रेज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी या कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और थर्ड केस, चूंकि इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर में भी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। ओके, और ये अगर इसको हम ग्राफिकली देखें, तीनों मेटल्स का ग्राफ अगर हम देखें तो वी विल फाइंड सच टाइप ऑफ ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ये टिपिकल ग्राफ है किसके लिए, फॉर कॉपर के लिए है। दिस इज एब्सोल्यूट, इस तरीके का ग्राफ आता है। ओके, और दिस इज फॉर कॉपर मेटल के लिए। हाँ, थोड़ा सा लीनियरिटी भी इसमें रहती है और धीरे धीरे नॉन लीनियर होता है। और सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से, मोस्टली सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका कार्बन भी होता है लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स लिए जाते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी रो और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचे तो नेगेटिव अल्फा है। ओके, और एलॉय का केस में अगर हम देखें, सपोज दिस इज एलॉय, तो इसका इस टाइप का था। ओके, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी। इट इज फॉर, थर्ड वन इज फॉर, इसको रादर सेकंड बोले एलॉय के लिए। ओके, एंड दिस वन इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट। तो ग्राफ से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें बहुत स्लाइट डेविएशन हो रहा है रेजिस्टिविटी में।
यहाँ पर रेजिस्टिविटी नॉन लीनियर वे में कुछ देर तक तो लीनियर रहती है, इसके बाद नॉन लीनियर हो जाती है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। जब टेम्परेचर हम काफी बढ़ा देते हैं तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर वी हैव सच ए कंडक्टर, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी काफी कम हो जाती है। बेसिकली द सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, या कह सकते हैं रेजिस्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। तो टेम्परेचर के साथ नेगेटिव इफेक्ट देता है। इसके लिए अल्फा इसके लिए पॉजिटिव है, इसके लिए अल्फा नेगेटिव है, और इसके लिए अल्फा एक तरह से मान सकते हैं 0 और वेरी स्मॉल, यानी इसका इतना कम है कि वो डेविएशन आपको अप्रिसिएबली बहुत कम मिलता है। एक्सपेरिमेंटल पर्पज से थोड़ा बहुत टेम्परेचर अगर करंट फ्लो करने से हीटिंग का इफेक्ट होता है तो उससे रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो हमारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में सपोज करिए हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस अननोन के रेजिस्टेंस में हम टेम्परेचर का इफेक्ट लेने लगेंगे। इसीलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो मेटल्स लिए जाते हैं, सॉरी जो वायर्स लिए जाते हैं, वो कौन से लिए जाते हैं? एलॉयज के लिए जाते हैं, कांस्टेंटाइन, मैग्नीन या नाइक्रोम के। ओके, अब हम आपसे बात करने वाले हैं द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस दोनों के साथ इसका रहता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। एक बात तो आप लोगों ने देख लिया, चाहे मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, एलॉय हो, इंसुलेटर की बात अभी नहीं की जा रही है। इन ईच एंड एवरी मेटल इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देयर इज चेंज इन द रेजिस्टेंस। अब इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच मेटल यू हैव टेकन। सो यू कैन से इफ सपोज करिए टेम्परेचर T से आपने T प्लस dt कर दिया, ओके, फॉर एनी मटेरियल, let us change the temperature from T to T plus dt and resistance will be changed, suppose R plus dr। अब यहां जो हम R की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इंक्रीज कर रहा है, तो यह इंक्रीज क्या मान रहे हैं, किसमें है? मेटल होगा तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, घट भी सकता है। ओके, अब इसको देखें तो dr जो आपका रेजिस्टेंस में चेंज है, चेंज इन रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा? दो फैक्टर्स पर। एक तो हमने टेम्परेचर कितना रेज किया, दूसरा किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर पर गए, यानी उस टेम्परेचर पर उसका जो रेजिस्टेंस है कितना था, या रेजिस्टिविटी उसकी कितनी थी। तो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उसका जो भी रहा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा कि चेंज कहां से कहां ले गए। तो ये जो dr है एक्चुअली डिपेंड करेगा r पर एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन dt। तो यू कैन राइट दिस एज dr इज प्रोपोर्शनल टू r dt, or dr simply can be written as equal to alpha r dt. Here alpha is constant known as temperature coefficient of resistance और रेजिस्टिविटी। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब इसमें जो R है, R ओरिजिनल जहां से हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस पर रेजिस्टेंस है, dt चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 काफी मोस्टली अल्फा क्या है, कांस्टेंट होता है, बट इन सम केसेस अल्फा में वेरी। ठीक है, अब यहां से अगर हम निकालना चाहें अल्फा की वैल्यू तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट इट dr
इज इक्वल टू अल्फा आर डी टी। टेम्परेचर हमने मान लीजिए टी आई से टी एफ लिया और यहाँ ओके। अब इस डी आर इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करें तो हमें निश्चित रूप से आर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, वी कैन कैलकुलेट इट। और ये सब आपको हम बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो अभी लिखा था आर टी इज इक्वल टू आर 01 प्लस अल्फा टी, उसी को हम डेराइव करके दिखाना चाहते हैं। ये जो मिला, अब यहां से R0 R सपोज करिए आर टी है सपोज करिए, या आर आई से आर एफ है मान लीजिए, तो यहां पर आपको मिला आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू, यहां आर को आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस अल्फा, ये जो मिला टी आई से टी अल्फा डी टी, ओके, या इसको यहां तक ले आए आर आई से आर एफ डी आर, ओके। अब यहां पर इक्वल टू ये मिला। अब इसमें ये एक्सप्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है, अगर अल्फा मोस्टली अल्फा कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए अल्फा कुछ फैक्टर्स के साथ डिपेंडेंस में दिया गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट अल्फा है तो उसके लिए यहां रख करके आप निकाल लेंगे। अदरवाइज अल्फा कांस्टेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर एफ माइनस आर आई डी आर का इंटीग्रेशन आर, इसको लिमिट रखा, इज इक्वल टू अल्फा आर, यहाँ टी एफ माइनस टी आई, सो वी कैन राइट दिस एज अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई, ये सपोज करिए आर आई है, सो वी कैन हैव आर एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस अल्फा आर आई डेल्टा टी। अब इस आर आई को सपोज करिए आर आई इज इक्वल टू आर 0 और आर एफ को हमने ले लिया आर टी किसी एक टेम्परेचर टी पर, ओके। सो वी हैव रिलेशन लाइक दैट, आर टी इज इक्वल टू आर 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, ओके, डिफरेंस। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस which is applied on the conductor or metals, okay। तो इससे हमें दो चीज बातें बनी, हमें अल्फा अगर गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस पता है, तो वी कैन कैलकुलेट किसी एक टेम्परेचर पर क्या जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। दूसरा अल्फा भी यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट अल्फा। उसके लिए क्या आइडिया है, तो अल्फा के लिए हम ये करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर 0 अपान आर 0 इंटू डेल्टा टी, ओके। अब यहां से एक चीज देखें, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ आर 0 इज इक्वल टू 1 ओम एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू degree centigrade, then alpha is equal to delta R, or you can say R T minus R0। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान रहे, यूनिट वैल्यू का रेजिस्टेंस लेकर के उसके किसी भी मटेरियल को, ऐसा मटेरियल लें जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, यूनिट ओम हो, और उसमें यूनिट डिग्री टेम्परेचर रेज कर दें, तो जो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस दोनों को इससे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन 6 ओम एंड एट 7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल एंड ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रहे,
मूल क्वेश्चन यह है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर उनके रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एंड वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल एंड आल्सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स द क्वेश्चन, हाउ वी कैन सॉल्व इट। अभी हम लोगों ने देखा जस्ट थोड़ी देर पहले कि आर एफ अगर हम देखें तो कम्स आउट टू बी आर आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही हुआ था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जिसको हम लोग डेल्टा टी बोल रहे हैं। Here given R1 is equal to how much? 6 ohm. R2 is equal to how much? 7 ohm. And delta T कितना है? Delta T is 100 minus 50, that is 50. Okay? और इससे अगर हम देखें तो इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो वी हैव R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, वेरी सिंपल। तो अब यहां से अल्फा इज इक्वल बी रिटन एज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। सो वी हैव R2 कितना है 7 माइनस 6 अपॉन R की वैल्यू 6 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 50, दैट इज 1 अपॉन 300। ये डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R एट 0। ओके, R0 कैन बी फाइंड आउट बाय दिस 100 पर दिया, R100 कैन बी रिटन एज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ओके, अब T2 माइनस T1, अब T1 तो 0 है, T2 इज हियर 100, सो अल्फा इज आल्सो गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट R0। सिंपली R0 इज इक्वल टू R100 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस 0, 100 अल्फा इंटू 100। सो वी हैव R100 की वैल्यू कितनी है, R100 की वैल्यू है 7 ओम अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 300 इंटू 100 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 3, दैट इज 7 अपॉन 4 बाई 3, दैट इज 21 बाई 4, दैट इज 5.25 ohm. This is the temperature at 0 degree centigrade. So, any problem regarding the coefficient of resistivity, temperature coefficient of resistivity can be solved by using this formula. Rf is equal to Ri 1 plus alpha delta T, और R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1, जिसको हम डेल्टा T लिख रहे हैं। और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं, अल्फा पूछा जा रहा है या अल्फा की वैल्यू दी गई है आपसे, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस एट व्हाट टेम्परेचर, ये भी पूछा जा सकता है। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्न रेजिस्टिविटी को करंट डेंसिटी के टर्म में डिफाइन किया, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में डिफाइन करके वी हैव एक्सप्लेन हाउ द temperature affects the resistivity as well as resistance for conducting material, for alloys and for semiconductors. Or we have seen that alpha for the conductors always positive, alpha for the semiconductors taken as negative, but in case of alloys alpha is appreciably you can say around 0 or too small, so that one can say that there is no temperature effect on the alloy substances, यानी alloys पर टेम्परेचर का उतना इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इनको एक्सपेरिमेंटल सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और और हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये जाना कि कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स में रेजिस्टेंस दिए गए हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ temperature coefficient of the resistance. All these things we learned in today's lecture. और अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी and some other important properties regarding the conductors. Okay, that's all today.